students, welcome to Dakshina A classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So we'll be starting a new lecture of center of mass. So in the last lecture and last to last lecture, we had done some problems on conservation of linear momentum. We had solved a lot of problems, different kinds of problem. So now in this lecture, we'll be seeing acceleration of center of mass at first, and then we'll go to the further topics. So you can write acceleration of center of mass. So acceleration of center of mass was A center of mass is equal to m1a1 plus m2a2 plus up to mn an divided by total mass of the system, where these are the vectors. Clear? A1, A2 can be in any directions. They can be in 3D. Clear? So A of center of mass was like this. Now from here we can write A of center of mass into m total is equal to, this is net force on first object, net force on second object, net force on third object. So F net, F total on the system. ठीक है? So यहाँ से हमें मिला था कि A of center of mass will be affected if we have net force on the system. If there are only internal forces, if there are no external forces on any object, so we can say on the complete object we don't have any external force. We have only internal forces, and when we talk about the internal forces are zero, है ना? जब हमने पूरे को एक सिस्टम ले लिया, internal forces will become zero. एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. Sum of all the internal forces will be zero. So if there is no net external force on the system, then acceleration of center of mass is it will be unchanged, है ना? It will not change. So if F net on the system is zero, या फिर आप बोल सकते हो कि if external total on the system is zero, then A of center of mass is going to be zero and velocity of center of mass is not going to change. It will remain unchanged. So if there is no net force on the system, there can be internal forces, but if the net force on the system is zero, then the acceleration of center of mass is going to be zero and velocity of center of mass will be constant. And if the center of mass was at rest, it will remain at rest. अब इसमें क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है कि इनिशियली हमने ये केस मान लिया कि जब f external is zero, तो फिर क्या होगा? Velocity will remain constant. If it was at rest, it will remain at rest. If it was moving with some velocity, it is going to continue with that velocity. But now, and these two cases we have already done, है ना? कि motion of center of mass का जो first case था, in that case हमने देखा कि velocity of center of mass is zero है. सेकेंड केस में हमने जो देखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, एंड देन वी हैड डन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि पहले जितना मोमेंटम था बाद में उतना ही मोमेंटम रहेगा. पहले अगर मोमेंटम जीरो था तो बाद में मोमेंटम जीरो रहेगा. पहले अगर रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास, बाद में भी रेस्ट में रहेगा. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस व्हेन A of center of mass is not zero. A of center of mass is not zero. These cases we have already done. So it means there is a net external force on the system. Clear? तो कुछ हमारे पास 2, 3, 4 सिस्टम का 2, 3, 4 पार्टिकल का सिस्टम है, एंड देन देयर इज अ नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम. बट लेट्स से कि देयर आर सम इंटरनल चेंजेस इन द सिस्टम. कुछ हो गया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था जिस पे कुछ एक्सेलरेशन लग रहा था. इट वाज अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट देन इट गॉट एक्सप्लोडेड एट सम मोमेंट. तो वो एक्सप्लोड हो गया. एक्सप्लोड हुआ मतलब वो बिकॉज ऑफ व्हाट फोर्सेस? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस. अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई या कुछ भी रिएक्शन हुई, बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस वो एक्सप्लोड हुआ है. तो डू वी हैव एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम? नहीं. पहले वी हैड ओनली वन ऑब्जेक्ट जिस पे कुछ एक्सेलरेशन था, मान लो. नाउ अगेन वो एक्सप्लोड हो गया. नाउ वी हैव 2, 3 पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम. दैट बॉम्ब और बॉल और ऑब्जेक्ट गॉट एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स. तो अब 3 पार्ट्स है हमारे पास. वी हैव 3 पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम. उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा होगा जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तब. ठीक है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी वही है. अभी भी अगर हम वही फोर्स लगा रहे हैं, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन सेम. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज वहां पे एक नए फोर्सेस आए. व्हाइल एक्सप्लोजन वहां पे नए फोर्सेस आए, बट दोज वर इंटरनल फोर्सेस. तो अभी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज सेम. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट विल नॉट चेंज. सो इससे क्या होगा? इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग, देन मान लो पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, नाउ वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स. सो नाउ पहले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज rate of change of velocity of center of mass.
तो पहले जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही थी अभी भी उसी रेट से चेंज होगी। नाउ यू विल हैव 3 पार्टिकल्स बट उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसी रेट से चेंज होगी, इसी रेट से चेंज होगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? अब इसका जो एग्जांपल है वो जैसे मान लो आई हैव प्रोजेक्टेड अ पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। अब ये ऐसे जाएगा इस तरीके से विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पे इसका पाथ क्या है? अभी इस प्रोजेक्टाइल का पाथ है समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस तरीके से है। नाउ मैंने कहा कि भाई ये इस पॉइंट पे पहुंचा एंड इट गॉट एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? देयर आर फोर्सेस इंटरनली, उनके बीच में कुछ फोर्सेस थे जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो गया। बट इस पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v cos थीटा होनी चाहिए वेलोसिटी, है ना? When this particle is here, its velocity should be v cos theta. लेकिन वो वहां पे जैसे पहुंचा, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा फूट गया, एक्सप्लोड हो गया। तो अब क्या होगा? क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस पॉइंट चेंज हो जाएगी? पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पहले वी हैड ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो इट्स वेलोसिटी वाज v cos theta, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज v cos theta एट दिस पॉइंट। नाउ जब वो यहाँ पे पहुंचा, it is not a single particle now, there are 3 particles in place of that single particle। तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? नो, चेंज नहीं होगी ना, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्सेस थे पहले भी उस पे यहाँ पे mg 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 थ्रू आउट दी पाथ mg is acting on that object। बाद में मान लो इसका टोटल मास है कैपिटल M, अभी हो गया m1 m2 and m3, so definitely we'll have m1 plus m2 plus m3 plus हाँ m1 plus m2 plus m3 is equal to कैपिटल M। ये तो रहेगा ही। हम तो यहाँ मास के लॉस के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो रिलेटिविटी पढ़ ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा? m1 plus m2 plus m3 is equal to कैपिटल M अभी भी है। सो नाउ अभी भी इस पूरे सिस्टम पे, दिस इज द कंप्लीट सिस्टम, अभी भी इस पूरे सिस्टम पे नीचे क्या लग रहा है? कैपिटल mg। पहले भी क्या लग रहा था? कैपिटल mg। सो इज देयर एनी न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? नो। इसका मतलब यहाँ पे एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे वो एक्सप्लोड हुआ है, उस इंस्टेंट पे कैन आई कंजर्व द मोमेंटम? यस। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इट इज कांस्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंस्टेंट, कि अगर नहीं फूटा होता तब भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती? v cos थीटा। अगर फूट के 3 पार्टिकल्स में भी बट गया तब भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? v cos थीटा ही होगी। सो कैन आई कंजर्व द मोमेंटम एट दिस पॉइंट? यस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमने जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब वहां पे क्या है? जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, आफ्टर द एक्सप्लोजन है वो उसी जगह पे, वो तो बहुत नैनो सेकेंड वाला एक्सप्लोजन का जो ड्यूरेशन है वो तो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या है? अगर ये ब्रेक नहीं होता तो भी क्या होती है वेलोसिटी? v cos थीटा। ब्रेक हो गया तो भी वेलोसिटी क्या होगी? v cos थीटा। तो अगर इस पॉइंट पे हम चाहें तो हम कंजर्व कर सकते हैं कि m v cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, v2 हो गई एंड v3 हो गई, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब ये किस फॉर्म में है v1 v2 v3 हमें अभी नहीं पता, वो हम लोग लेंगे क्वेश्चंस में और करेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, भाई इस थ्रू आउट द प्रोसेस उस पे एक ही फोर्स लग रहा था mg, एंड जब यहाँ पे वो एक्सप्लोड हुआ तब भी फोर्स क्या है? वही है, पहले भी mg था, अभी भी mg था। सो आई एम सेइंग कि अगर f net on the system is not zero and if it is constant throughout the process, then acceleration of mass is going to be constant throughout the process। जैसे यहाँ पे है acceleration of center of mass will not change, तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये देखो, जब ये ब्रेक हो चुका है, previously we had कैपिटल M एक सिंगल ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास है ये 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो अब इसको भूल जाओ, इसको अगर हम रिप्लेस करें विद द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करें तो यही मिलेगा। क्लियर है? अ सिंगल ऑब्जेक्ट विथ कंप्लीट मास, विथ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अभी पहले भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या थी? v cos थीटा, अभी भी v cos थीटा रहेगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले भी क्या था? g, इस प्रोसेस में पहले भी g था, अभी भी इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g होगा। इसका मतलब पहले अगर सेंटर ऑफ मास इस पाथ को फॉलो कर रहा था तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करेगा, बिकॉज फॉर सेंटर ऑफ मास नथिंग हैज चेंज्ड, फॉर सेंटर ऑफ मास नथिंग हैज चेंज्ड।
सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सेलरेशन तभी चेंज होता है व्हेन वी विल हैव अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन चेंज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स पे, इंटरनल फोर्स पे नहीं होता। सो इंटरनल फोर्सेस अगर आ भी गए, सो इज इट गोइंग टू चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? नहीं। तो यहाँ पे फॉर दिस ऑब्जेक्ट और फॉर द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम और दिस पर्टिकुलर सिस्टम नथिंग हैज चेंज। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जैसे जा रहा था अभी वैसे ही जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास जाकर के यहाँ पे गिरने वाला था, इफ दिस ऑब्जेक्ट वाज अबाउट टू फॉल at this place and it was about to follow this path, it is going to do that even after the explosion. अब इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल कहीं और जाएगा, ये पार्टिकल कहीं और जाएगा, ये पार्टिकल कहीं और जाएगा, but the center of mass finally it is going to lie here. The center of mass is going to follow this path only. अब आपको तो पहले से ही पता है कि सेंटर ऑफ मास फिजिकली तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि केक वाला एग्जांपल दिया था, सेंटर ऑफ मास तो कुछ होता नहीं ना कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट जाता दिखाई दे। अगर आप ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो कि द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लोडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट और आप देखो कि अरे सेंटर ऑफ मास इस बात को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो क्या आपको दिखेगा वहां पे? नो, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर? तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो राइट योर फर्स्ट क्वेश्चन। So we have a particle which is projected with speed 50 meter per second at an angle 30 degree, not 30 degree, take it as 53 degree with horizontal. If this object explodes at highest point, if this object explodes at highest point in 3 equal parts, in 3 equal parts, one object comes to rest out of the 3 equal parts, one comes to rest, other one is going in the direction 37 degree with horizontal with speed 10 meter per second. Then find out the velocity of third particle. Velocity of third particle. Clear? So एक रेस्ट में आ गया, एक 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे चला गया, तो तीसरे की स्पीड, तीसरे की वेलोसिटी क्या होगी, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एवरीथिंग वी हैव टू टेल। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, भाई पहले ये ऑब्जेक्ट जा रहा था बढ़िया यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुंचता एट दिस पॉइंट इट्स स्पीड मस्ट हैव बीन v cos थीटा, दैट इज v is 50, cos थीटा इज 3/5, तो ये आ जाता है आपका 30 meter per second. So at this point this object must have the velocity 30 meter per second. But now जब उस point पे पहुंचे, that object is not a single object now. It has exploded in 3 parts. But अब उन तीनों का जो center of mass होगा उसकी velocity क्या होगी, अभी भी 30 meter per second ही होगी। So अब हमारे पास जो velocity of center of mass वाला जो concept आता है, velocity of center of mass will remain constant. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे मास को, मास ऑफ द सिस्टम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना? यही था ना हमारे पास, क्या था, v ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास। और हमने ये बोला था कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इफ दिस इज जीरो देन दिस इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, सो दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। और फिर हमारे पास क्या आया था, P ऑफ सिस्टम, बिकॉज ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, P ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है ये चीज? तो हम क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, we will write P initial is equal to P final. So initially मतलब पहले, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे क्या कंडीशन होती, टोटल मास ऑफ द सिस्टम।
तो टोटल मास हमने मान लो मैंने ले लिया 3m। मैंने यही बताया ना कि इट हैज एक्सप्लोडेड इन 3 इक्वल मासेस, ठीक है। तो मैंने इसको 3m ले लिया और यहाँ पे m m m। क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या किया 3m, इस मूवमेंट में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं कि बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगी कंडीशन। तो 3m इंटू v cos थीटा, या फिर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कितना है v cos थीटा इज 30, और ये कैसे है i कैप में है, बिकॉज वी हैव हियर i कैप एज वेल एज j कैप, इसलिए हम i कैप j कैप में लिखेंगे, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये तो रेस्ट में आ गया, इसका मोमेंटम हो गया 0, ठीक है। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू 10 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, ठीक। तो 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस m इंटू v ऑफ थर्ड पार्टिकल, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हुआ एंड व्हाट विल गेट 90 i कैप माइनस 8 i कैप माइनस 6 j कैप इज इक्वल टू velocity of third particle. So velocity of third particle will be 90 minus 8, it is 81, 82 i cap minus 6 j cap. This will be the velocity of third particle. Clear है ये चीज? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फोर्स अभी भी पहले जितना था उतना ही लग रहा है, तो acceleration of center of mass is not going to change, और center of mass is going to follow the same path. Center of mass is going to follow the same process. Same rate of change of acceleration, rate of change of velocity, I'm sorry, same rate of change of velocity. तो यहाँ पे उसका acceleration वही है, भाई इस पॉइंट पे उसकी velocity वही रहेगी, इस पॉइंट पे जब पहुंचा था v cos थीटा थी, तो बाद में भी क्या होगी, अगर आप वो 3 पार्ट्स में अगर ब्रेक भी हो गया तो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v cos थीटा ही होगी, और ये सेम पाथ को फॉलो करेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई हमने बोल दिया कि इट ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, और अगर इट ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स उसके बाद भी इट इज गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस पहले इस पे mg लग रहा था और अभी क्या लग रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, तीनों पे m1g m2g m3g ऐसे लग रहा है। तो पूरे सिस्टम पे अभी भी देखो तो कितना लग रहा है, कैपिटल m इंटू g लग रहा है। लेकिन अगर मान लो 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल ने अलग अलग वेलोसिटी गेन कर ली है, ठीक, तीनों पार्टिकल ने अलग अलग वेलोसिटी उनके पास आ गई। अब एक अगर मान लो अर्थ सरफेस पे पहले पहुंच गया और उस टाइम दूसरा हवा में ही लटका हुआ है, ठीक है, मान लो एक जो यहाँ पे रेस्ट में आया था, मान लो ये जल्दी पहुंच गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, इस जगह पे जल्दी पहुंच गया, और एक अभी भी यहाँ पे है, तो इस पे क्या लग रहा है, इस पे m1g और ऊपर नॉर्मल, इस पे m2g और तीसरा मान लो यहाँ पे इस पे m3g। तो नाउ ऑन योर सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम, ऑन योर सिस्टम नेट फोर्स इज m2g प्लस m3g, बिकॉज जो यहाँ पे पड़ा है उसके लिए तो n इज इक्वल टू m1g हो गया। तो अब सिस्टम पे क्या है, नेट फोर्स इज नॉट सेम एज बिफोर, पहले क्या था m1g प्लस m2g प्लस m3g, बट नाउ इट इज ओनली m2g प्लस m3g, बिकॉज m1g तो कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। तो उस केस में इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ। तो बेसिकली कब सेम पाथ फॉलो करेगा, जब थ्रू आउट द प्रोसेस तीनों साथ में अगर सरफेस पे आए, तीनों साथ में अगर सरफेस पे आए, उस तरीके के आपको जो अरेंजमेंट आएंगे, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसी तरह के आएंगे, ताकि आप ये चीज फॉलो कर सको कि भाई द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ। तो थ्रू आउट द प्रोसेस यहाँ से जैसे ही उठा तो पूरा mg लगा, यहाँ पे अगर ब्रेक भी हो गया तो भी इट विल टेक ऑल द 3 पार्टिकल्स और 2 particles और 4 particles, all of them are going to take the same time to reach the ground। क्लियर है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और अगर उनको क्वेश्चन में अगर उनको इस पार्ट से कोई लेना देना ही नहीं है कि किस टाइम पे पहुंच रहा है, उनको सिर्फ इस बात पे उनको गौर करना है कि आफ्टर एक्सप्लोजन क्या वेलोसिटी आई पर्टिकुलर पार्टिकल की, तो सिर्फ वो इस मोमेंट की बात है। इसके बाद अगर एक पहले गिर गया, एक बाद में गिर गया, थोड़ा टाइम का इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको वैसे ही आएंगे कि वो सेम टाइम पे तीनों साथ में सेम टाइम पे नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ थ्रू आउट द प्रोसेस, ग्राउंड तक पहुंचते तक। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक पहले पहुंच गया तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी देर तक तो उस पे mg लगता रहा, बट आफ्टर सम टाइम ये तो धरती पे आ गया, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हैज चेंज्ड नाउ, इट इज नाउ m3g और यहाँ पे m2g। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हैज
चेंज, ठीक है। लेकिन टोटल मास ऑफ द सिस्टम अभी भी हमारा वही है, क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमारा सिस्टम तो ये था ना, ये था, लेकिन इस पे जो नेट फोर्स था वो कैंसिल हो गया नॉर्मल की वजह से, तो उस केस में इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो दी सेम पाथ, सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू फॉलो दी सेम पाथ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A particle is projected with speed v at an angle theta with horizontal. If it got exploded at highest point in two equal parts, if one part retraces its path, the path, then find out where the other part will hit the ground. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है समझ लेंगे। एक पार्टिकल था, मास 2m का ले लो, क्योंकि इट इज ब्रेकिंग इन टू पार्ट्स, तो हम लोग टू इक्वल मासेस, तो हम लोग क्या करेंगे, m एंड m, एक m है दूसरा भी m है, तो ये क्या हुआ, 2m था पहले, ये m और m में ब्रेक हो गया एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, v cos थीटा वेलोसिटी थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, जिसमें से एक जो है वो वापस इसी पाथ पे आ रहा है, इसमें से एक क्या कर रहा है, वापस, इसको अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, सो दोनों में से एक मास जो है वापस इसी पाथ पे आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू लाई हियर, रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब उसी पाथ पे वापस आया, तो यहाँ गिरेगा वो, क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखो कि अगर रिट्रेस कर रहा है तो यहाँ पे गिरने के लिए तो डेफिनेटली उसको किस वेलोसिटी से आना पड़ेगा, इधर अगर आ रहा है और यहाँ पे गिर रहा है तो v cos थीटा से ही आएगा, क्लियर है ना ये चीज, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट से इसको यहाँ पे गिरने में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v cos थीटा, अब वो 5 kg का रहे, 2 kg का रहे, 1 kg का रहे, अगर यहाँ से इस जगह पे गिरने वाला है या यहाँ से इस जगह पे गिरने वाला है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v cos थीटा ही होनी चाहिए, क्योंकि v cos थीटा वाला अगर पार्टिकल है उसका डायरेक्शन अगर इधर साइड होगा v cos थीटा तो ऐसे गिरेगा इस जगह पे, अगर v cos थीटा इधर साइड होगा तो इस जगह गिरेगा, सिमेट्रिक है ना अबाउट दिस पॉइंट, तो ये v cos थीटा वेलोसिटी से इधर आएगा और यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। अब दूसरा जो पार्टिकल है, अब इस पॉइंट पे इनकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, दोनों मास की मिला के कितनी होनी चाहिए, v cos थीटा होनी चाहिए, क्लियर है। तो पहली चीज तो ये भाई ये गिर रहा है इस जगह पे, तो दूसरा कहाँ गिरेगा हमें वो बताना है। अब दूसरा कहाँ गिरेगा उसके लिए आपको वेलोसिटी या कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। आई नो कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है मेरे पास ये दो पार्टिकल्स है, बट जो सेंटर ऑफ मास है वो तो अभी भी यहीं गिरेगा ना, अभी भी सेंटर ऑफ मास विल लाई हियर ओनली, सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे हिट करेगा, क्योंकि इज देयर एनी चेंज इन द फोर्सेस ऑन द सेंटर ऑफ मास, इन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस पॉइंट, नो, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है फॉर सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब कि पहले अगर सेंटर ऑफ मास यहां लाई करने वाला था आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, अभी भी इसी जगह पे लाई करेगा, क्लियर है। तो ये लोकेशन क्या है, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ मास का, जब वो हिट करेगा ग्राउंड को, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज r। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला है, सेंटर ऑफ मास विल लाई एट r, 0, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट 0। तो अब एक मास इधर गिर गया तो दूसरा मास कहां गिरना चाहिए, सोच के देखो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इज नॉट चेंजिंग। ये तो वो क्वेश्चन हो गया जो हमने फर्स्ट केस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किया था कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड। तो अगर m जो है ये है m और ये है m, ठीक है, 2m को यहां गिरना है, m इधर गिर गया, ठीक है, m कहां गिर गया, इस साइड। अब सेंटर ऑफ मास को यहां लाई करना है, दिस इज सिमेट्रिक, वी हैव टू इक्वल मासेस, एक मास जो है वो 0 0 पे है और एक मास हमें नहीं पता कहां है, हमें पता करना है, बट वी नो दैट द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई एट r, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई एट r। तो अब इफ यू हैव इक्वल मासेस देन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, योर सिस्टम विल बी सिमेट्रिक। तो अगर एक मास इधर r पे है तो दूसरा मास भी इधर r पे होगा, तभी तो क्या होगा, वन मास इज एट 0, 0,
सेकेंड मास इज एट, कौन सा ये पॉइंट क्या जाएगा, दिस पॉइंट विल बी दिस r प्लस r, 2r, 0। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक मास है 0 0 पे, दूसरा मास है 2r 0 पे, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, r 0 पे। क्लियर, 0, 0, r, 0 एंड 2r, 0। तो अगर एक यहां लाई कर रहा है m, सेंटर ऑफ मास को यहां लाई करना है, तो दूसरा m कहां लाई करना चाहिए, एट 2r, 0। वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा भाई, एट दिस पॉइंट इफ इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ, अगर ये रिट्रेस कर रहा है पाथ, v cos थीटा अगर वेलोसिटी होती, यहाँ पे m है, 2m है, 4m है, 5m है, अगर v cos थीटा वेलोसिटी होती तो कहां जाके गिरता ये, एट दिस पॉइंट। नाउ वी हैव m एंड m, तो इसको अब इसको अबाउट दिस पॉइंट इट इज सिमेट्रिक, तो इधर से इसको यहां आने में या इधर से इसको यहां जाने में हाउ मच वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड इन x, इट इज v cos थीटा, v cos थीटा इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो इधर v cos थीटा हो गई। अब अगर इसकी वेलोसिटी इधर v cos थीटा है, नाउ वी नो एट दिस पॉइंट कैपिटल M या फिर 2m शुड हैव हाउ मच वेलोसिटी, v cos थीटा, या सेंटर ऑफ मास which has a mass equals to 2m, center of mass represents the total mass of the system and it represents a point, so 2m should have v cos theta velocity। तो सिंपली क्या लगाओ, p initial is equal to p final, क्योंकि at this point velocity is not going to change, वो ब्रेक हो जाए दो पार्ट में या 10 पार्ट में ब्रेक हो जाए, it is not going to change। at this point velocity of center of mass is going to be v cos theta only। so initially we had 2m v cos theta is equal to, finally what we have, minus m v cos theta, for this v cos theta is in this direction, so minus m v cos theta plus m v dash। ठीक है, also I can directly say कि भाई at this point net velocity of center of mass, the initial particle was only in x direction, it was v cos theta and it was only in x direction। अब b ने जो इस मास ने जो वेलोसिटी गेन किया है दैट इज आल्सो इन x डायरेक्शन। हाँ, वो अलग बात है कि नेगेटिव x में है, तो इसकी जो वेलोसिटी नई वेलोसिटी है दैट इज आल्सो इन x डायरेक्शन, तो इसकी भी जो नई वेलोसिटी होगी वो x में ही होगी। अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी x में होगी तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x में होगी, या फिर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x में है एंड वन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हैज वेलोसिटी इन x, अदर पार्टिकल विल आल्सो हैव वेलोसिटी इन x। क्लियर है ये चीज? तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो तो x में आएगी, मुझे इतना पता है। और अगर आपको डाउट ही है तो यहाँ पे लिख लो i कैप, यहाँ पे लिख लो माइनस i कैप, माइनस मैंने पहले लिख दिया। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2v cos थीटा i कैप, 2v cos थीटा i कैप प्लस v cos थीटा i कैप इज इक्वल टू v डैश। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? सो नाउ वी हैव v डैश इज इक्वल टू 3v cos थीटा i कैप। It means its velocity is v cos theta here and its velocity is 3v cos theta here. Now both the m and m have zero velocity in y direction. Y direction में दोनों की velocity 0 है। Clear? तो इनको y में displacement तो दोनों को same ही करना है। So both of them will have the same time. ठीक है, इसका इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि throughout the process center of mass is going to follow the initial path, जो उसका शुरू में होता था पहले without explosion and all, जो हम projectile में किया करते थे। So now here both of them have सेम टाइम टू कवर दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम टाइम पे धरती पे आएंगे क्योंकि दोनों की y में वेलोसिटी 0 है। नाउ x में इसकी वेलोसिटी है v cos थीटा, इसकी वेलोसिटी है 3v cos थीटा। मान लो हमको टाइम लगा y डिस्टेंस कवर करने में t, तो दोनों को t टाइम लगेगा। नाउ x में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा x में, v cos थीटा t, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 3v cos थीटा t। अब देखते हैं, इसका मतलब इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया x में, इसने उसका 3 टाइम्स कवर किया। देखते हैं क्या ये करेक्ट है। सो इन दैट t टाइम इसका x में डिस्प्लेसमेंट कितना है r/2 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज r/2 प्लस दिस इज r, कितना है r/2 प्लस r, 3r/2, मतलब एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि व्हेन इट इज ब्रेकिंग इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। तो अब यहाँ पे क्या है, एट दिस पॉइंट जो नेट मोमेंटम है वो अभी भी कितना होना चाहिए, 2mv cos थीटा, 2m into v cos थीटा। ठीक है, तो 2mv cos थीटा इज इक्वल टू माइनस mv cos थीटा प्लस mv डैश, कितना आ गया, इसकी वेलोसिटी है 3v cos theta, its velocity is 3v cos theta, and now this is falling at the origin or at the projection point, and this is falling at the distance 2r from the projection point. Clear है? या फिर from here it is falling at 3r/2
and it is falling at r/2. ये जो है इससे 3 times डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वही गिरना है जहां वो गिरने वाला था. सेंटर ऑफ मास विल हिट द बॉटम और हिट द सरफेस एट दिस पॉइंट ओनली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के जो सिचुएशन है या उसके जो फोर्सेस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है. अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द फर्स्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो दो ब्रेक हुए हैं इसमें बी पार्ट लिख लो. If the first particle comes to rest at the highest point, find the location of the second particle when it hits the bottom. Find the location of second particle when it hits the bottom. ठीक है, तो पहले वाले में क्या आएगा? It will come to the initial point and the other particle will lie at 2r, 0. Now same question में second part is, if the first particle comes to rest at the highest point, then find out the location of the second particle when it hits the bottom. सेम v पे थीटा पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया. ना यहाँ पे क्या हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये रेस्ट में आ गया. क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है, इनिशियली 2m v cos थीटा था, 2m into v cos थीटा. नाउ it is m is equal to m into 0 plus m into v dash. तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ गया v डैश इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, v डैश इज इक्वल टू 2v cos थीटा. v डैश इज इक्वल टू 2v cos थीटा. तो ये अगर रेस्ट में आ गया तो ये कितने से जाएगा, 2v cos थीटा. तभी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी ना पहले जैसी. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, m1v1 प्लस m2v2 विच इज 2mv cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो इसकी जब 2v cos थीटा वेलोसिटी होगी तब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ये इस इक्वेशन का मतलब वही है. P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग एट दैट इंस्टेंट. जिस इंस्टेंट पे लगा रहे हैं वहां पे, यहाँ पे तो थ्रू आउट द प्रोसेस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहले और बाद में क्या हुआ. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2mv cos थीटा. अब हमसे पूछा है कि 2v cos थीटा. अब हमसे पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड, किस पॉइंट पे हिट करेगा. तो क्या हम ये चीज कि सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ, इट इज गोइंग टू हिट द सेम पॉइंट इनिशियली इट वाज अबाउट टू डू, क्या हम वो लगा सकते हैं? यस, क्योंकि इसकी भी y में वेलोसिटी 0 है और इसकी भी y में वेलोसिटी 0 है. इसकी तो x में भी 0 है, y में भी 0 है. तो इसकी भी y में 0, इसकी भी y में 0. इट मींस दे आर गोइंग टू take same time to cover the y displacement. It means they are going to hit the ground at the same time. Same time पे पहुंचे, प्रोसेस खत्म. और उस टाइम तक the force which was acting on this complete system will be how much? It will be equals to 2mg. कितना होगा, 2mg. तो ये गिरेगा इस जगह पे, सेंटर ऑफ मास को गिरना है इस जगह पे. मासेस दोनों सेम है, तो फिर क्या होना चाहिए, इतने ही डिस्टेंस पे दूसरे मास को गिरना चाहिए. अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है और m यहाँ लाई कर रहा है तो दूसरा m यहाँ लाई करना चाहिए. इफ दिस इज r/2 देन दिस शुड बी r/2. ये तो r/2 है ना, हाफ ऑफ द रेंज. सो इफ दिस इज r/2 दिस शुड बी r/2. इसका मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट वेयर द थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू लाई, अगर आपने इसको ओरिजिन लिया है, देन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल. सेकंड पार्टिकल की लोकेशन क्या हो जाएगी, सो दिस इज टोटल r या फिर r/2 प्लस r/2 प्लस r/2. Its location will be 3r/2, 0. So the third particle will lie at 3r/2, 0. Now अब देख लेते हैं यहाँ पे. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि v डैश आ रहा है 2v cos थीटा. v डैश क्या आ रहा है, 2v cos थीटा. तो अगर इनिशियली यहाँ पे जो 2m मास का पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा थी. तो उतने ही टाइम में सेंटर ऑफ मास बोल लो या ये पार्टिकल बोल लो या ये पार्टिकल बोल लो, ऑल ऑफ देम आर टेकिंग सेम टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस. यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम को ले लो या फिर 2m मास के एक सिस्टम को ले लो, सबकी इनकी भी इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है एट दिस इंस्टेंट. इसको मैं इनिशियल पॉइंट अगर लूं तो सबको टाइम कितना लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है टू कवर दी y डिस्प्लेसमेंट. भाई अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सबकी सेम है, एक्सेलरेशन सबका सेम है, तो सेम ही टाइम लगेगा ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से. तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 2m मास v cos थीटा से चलता तो 2m मास कहाँ पहुंचने वाला था, 2m मास तो यहाँ पहुंचने वाला था ना, जब कोई ब्रेक की बात ही नहीं थी.
when we were solving the questions in projectile motion. तो 2m मास चुपचाप यहाँ पहुंचने वाला था. तो basically after this instant how much distance it has covered? r/2. इसका मतलब with v velocity it is covering r/2. इसका मतलब with 2v cos theta velocity it should cover 2 into r/2, that is r. तो क्या ये ऐसा हो रहा है? तो हाँ हो रहा है. ये 2v cos theta से चल रहा है और ये कहाँ पहुंचा है? इस जगह से निकल के यहाँ पहुंचा है. तो इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ विल बी लाइक दिस, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या है? 2v cos थीटा. ये इस पाथ पे जाएगा और ये इस पाथ पे जाएगा और सेंटर ऑफ मास विल फॉलो दिस पाथ, जो कि उसका इनिशियल पाथ है, ओरिजिनल पाथ है. तो ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा सेंटर ऑफ मास. और जो प्रीवियस वाली प्रॉब्लम थी उसमें कैसे जा रहे थे? तो उसमें सेंटर ऑफ मास कहां गिरना चाहिए? सेंटर ऑफ मास का पाथ ये होना चाहिए. इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं. तो सेंटर ऑफ मास यहां से अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास शुड लाई हियर, क्योंकि यहीं पे गिरना है उसको. तो सेंटर ऑफ मास तो इधर जाएगा. भाई जो फर्स्ट पार्टिकल था वो यहां आ गया, तो सेकेंड पार्टिकल दिस इज r एंड दिस इज r, है ना. तो सेकेंड पार्टिकल कैसे जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है. इसकी वेलोसिटी इधर v cos थीटा, इसकी वेलोसिटी इधर 3v cos थीटा एंड इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v cos थीटा. सो ये v cos थीटा से चला और ये इधर गिरा. सेंटर ऑफ मास v cos थीटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले भी v cos थीटा थी, अभी भी v cos थीटा रहेगी और वो यहाँ पे गिरा. और जो थर्ड पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3v cos थीटा, 3v cos थीटा और ये इधर जाके गिरा. इसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में इसने r/2 कवर किया है. सेंटर ऑफ मास ने भी यहाँ से यहाँ r/2 कवर किया है, लेकिन इसने यहाँ से यहाँ 3r/2 कवर किया है. सो दिस विल बी द पाथ. एक इधर जाएगा और दूसरा मास इधर जाएगा एंड दैट्स हाउ द सेंटर ऑफ मास विल come to its original path and it will lie at the or hit the ground at the point which was taken in projectile motion. projectile motion में हम जैसे करते थे उस पे जिस पॉइंट पे गिरता था उसी पॉइंट पे गिरेगा. क्लियर है ये चीज? इसे मैं आगे फिर से क्वेश्चन लिख लो कि a particle is projected, details I'll give here. A particle is projected with 50 meter per second at an angle 53 degree. It breaks at highest point in 3 equal parts. It breaks at highest point in 3 equal parts. One comes to rest. One comes to rest. Second one retraces its path. Second one retraces its path. Then find the velocity of third part. Then find the velocity of third part. So here what is happening? Again हमारे पास एक 50 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड. सो हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड. तो मान लेते हैं कि 3m मास था, सो दैट हियर विल हैव m m एंड m. एक ने क्या किया? एक ने पाथ रिट्रेस किया, एक ने रेस्ट पे आ गया और हमें बताना है कि थर्ड का क्या हुआ. ठीक है. रिट्रेस मतलब इट इज गोइंग टू फॉलो दिस पाथ. अगर इस पाथ को फॉलो करना है, ठीक है, तो इस पाथ को फॉलो करने के लिए उसको कितनी स्पीड चाहिए? 30 मीटर पर सेकेंड एट हाईएस्ट पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो सिमिलरली अगर इसको रिट्रेस करना है पाथ, एक को अगर रिट्रेस करना है पाथ, तो इट शुड हैव 30 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये सिमेट्रिक ही है. इसका मतलब इसकी 30 मीटर पर सेकेंड है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इट हैज कम टू रेस्ट. इसका हमें नहीं पता. अब यहाँ पे क्या है भाई? सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है. ये रेस्ट में आ गया, इसकी तो बात ही खत्म. इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही है, तो इसकी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही होगी. ठीक है. y का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में, ना इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी में, तो ये भी क्यों रखेगा? ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास इनिशियली क्या था? 3m into 30 is equal to, this is initial momentum, initial mass into initial velocity at this point. Finally क्या हो गया? m into 0 plus m into v plus m into minus 30. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 90 is equal to v minus 30 and v is equal to 120 meter
per second. So it has come to rest, या फिर it has velocity 30 in this direction. It has come to rest and this is moving with 120 meter per second in this direction. ठीक है, अब यहाँ पे ये ले लो कि a particle of mass 5m है, ठीक है, और ये m 2m और 2m में ब्रेक हो गया, m 2m एंड 2m में ब्रेक हो गया. नाउ m हैज कम टू रेस्ट, m वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया, एक 2m वाला है वो रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, m वाला पार्टिकल रेस्ट में आ गया और एक 2m वाला रिट्रेस कर रहा है. देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड वन. इसमें भी क्या है, ये तो रेस्ट में आ गया, इसकी वेलोसिटी है ओनली x में, इसकी वेलोसिटी भी x में ही होनी चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ x में है. तो नाउ वी कैन राइट 5m into 30 is equal to इनिशियली, है ना, इस पॉइंट पे पहले वाली कंडीशन क्या थी, 5m into 30 और अभी क्या है, m into 0 plus 2m into minus 30 plus 2m into v dash जो हमें निकालनी है. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 150 is equal to minus 60 plus 2v dash. So 210 is equal to 2v dash and v dash is equal to 105 meter per second. क्लियर है. तो अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए उसमें काफी कुछ में हमने इक्वल मास लिया था, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मासेस. बाकी इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बननी है कि इस पॉइंट पे आके एक्सप्लोड हो गया, देन व्हाट इफ वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज लाइक दिस, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल. अब जैसे एकदम शुरू में एग्जांपल कराया था उसमें क्या था कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इन एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल. तो वैसे इसमें भी दे सकते हैं. देन व्हाट विल हैव, वी विल हैव वेलोसिटी इन x एज वेल एज y. क्लियर है ये चीज. तो बिल्कुल हम ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अभी के लिए इतनी चीजें हैं कि मान लो कोई फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही थी उसी रेट से चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से हो रहा था उसी रेट से होगा. तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के लिए नथिंग हैज चेंज्ड. इफ फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास हैज नॉट चेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, पहले जो कंडीशन थी, है ना, पहले क्या कंडीशन थी कि पहले बढ़िया ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब दिस पार्टिकल, तो बढ़िया इस पैराबोलिक पाथ पे जाएगा. अभी एक्सप्लोड होने के बाद भी सिचुएशन क्या है भाई, अभी भी सेंटर ऑफ मास पे वही फोर्स लग रहा है, वही जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है. तो अगेन वी आर गोइंग टू हैव सेम कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ना पाथ, ना एक्सेलरेशन, ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये अपना ओरिजिनल पाथ था, उसी को फॉलो करेगा और उससे हम रिलेट कर सकते हैं. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है किसी पॉइंट पे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो. क्लियर है ये चीज. तो इस टॉपिक में हमारे पास अभी यही क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. So in our next topic we are going to do some problems on spring mass system. So before that I'll just tell you a small topic. You can write equivalent spring constant. Equivalent spring constant. So basically here we are going to have some combination, series or parallel, and then we'll find out what is the equivalent spring constant. So if we talk about equivalent spring constant, so first is parallel. So if we have two springs which are in parallel, so like we have a mass here, its spring constant is K1, its spring constant is K2, and I want to replace this system with a equivalent spring constant. Here we have M and K equivalent. कि ये system था and I want to reduce it to a system where we have a single spring which can represent or which can tell us the complete information of this combination. तो ये इस सिस्टम को we want to replace with a equivalent spring. तो कैसे करेंगे? So like यहाँ पे अगर मैंने K1 K2 की हेल्प से if I am attaching this mass, तो क्या होगा? This mass will have some mg because of which ये नीचे आ जाएगा and then there will be some extension in the springs. अब अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली अगर मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया तो दोनों में x तो सेम ही रहने वाला है, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा. सो पैरेलल में क्या होता है, पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, डिफॉर्मेशन इज सेम इन बोथ द स्प्रिंग्स. डिफॉर्मेशन इज सेम इन बोथ द स्प्रिंग्स.
ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा, इसमें भी x इसमें भी x, भाई इसी के से नीचे खींचे जाएंगे दोनों, और नीचे खींचे जाएंगे तो दोनों सेम ही अमाउंट से नीचे खींच जाएंगे ना, क्लियर। तो नाउ व्हाट आई कैन राइट equation for equilibrium of this object. So mg is equal to net force on in upward direction. So net force will be k2x, spring stretched है तो ये k2x लगाएगा, ये k1x लगाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे k1x plus k2x. This is the equation for this system. अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो what I write, mg is equal to, ठीक है, तो यहाँ पे भाई डिफॉर्मेशन क्या है, I want to take a spring, इसकी जगह में एक ऐसा स्प्रिंग हम लेना चाहते हैं कि वो अगर उसको हम x से डिफॉर्म करें, this has deformed by x, this has deformed by x, तो यहाँ पे net deformation, to balance this mass we have a deformation of x, x से ज्यादा डिफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे, नहीं, we have a deformation of x। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक नई स्प्रिंग लेके आए जिसको हम x से डिफॉर्म करें और वो इस मास को बैलेंस कर पाए, तो what will write the equation, इसमें डिफॉर्मेशन क्या आ गया x, so mg is equal to k equivalent x. Now equate these two, so what will get, अगर हम इसको इक्वेट करें तो क्या मिलेगा वहां से, k1x plus k2x is equal to k equivalent x, k equivalent x is equal to k1x plus k2x. So here we can write k equivalent is equal to k1 plus k2. So when we have parallel combination, what we are going to have, k equivalent, इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी k1 plus k2। अब पैरेलल वाले कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अब कभी कभी हमारे पास 3-4 स्प्रिंग भी हो सकती है, बट ऐसे क्वेश्चन रेयरली आएंगे, ऐसे आते नहीं हैं, ठीक है, 2 ही काफी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि क्या किया हमने, अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, बोथ द स्प्रिंग्स आर गोइंग टू हैव द सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया तो यहां पे क्या होगा, दिस इज योर m, इसको अगर मैंने x से इधर डिस्प्लेस किया, मान लो x से इधर डिस्प्लेस किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा बाय x, इसमें x क्या हो जाएगा, स्ट्रेच, और ये x कंप्रेस, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन दोनों में कैसा है, डिफॉर्मेशन इज सेम, एक में स्ट्रेच हो रहा है, एक में कंप्रेस हो रहा है। नाउ इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन, तो क्या होगा, इसको अगर मुझे, ठीक है, अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है, नाउ हियर आई विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स, अगर मैं यहाँ कंप्रेस या स्ट्रेच करना चाहती हूँ, आई विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स इस पे अप्लाई किया, इस ब्लॉक पे, और मैंने इसको x से उधर, मैंने इस साइड इसको शिफ्ट किया, सो नाउ आई नीड टू अप्लाई दैट फोर्स। और अब यहाँ पे F हम अप्लाई कर रहे हैं और ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, इधर ब्लॉक पे लग रहा है F, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दिस इज स्ट्रेच्ड, तो ये क्या करेगा, मैंने ले लिया है k1 है और ये k2 है, ठीक है, तो दिस ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड, तो किधर लगाएगा फोर्स, k1x इस साइड खींचेगा अपनी तरफ। दिस ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, तो क्या करेगा, अवे फ्रॉम, वो क्या करेगा, कंप्रेस्ड है तो धक्का देगा उसको उधर, तो कितना फोर्स लगाएगा इस साइड, k2x। नाउ आई कैन राइट F इज इक्वल टू k1x प्लस k2x, ठीक है। सो आई कैन रिप्लेस कि भाई आई हैव अ स्प्रिंग एंड अ मास जिसपे हमने फोर्स लगाया है F इधर, ठीक है, और ये x से क्या हो गया है, डिफॉर्म हो गया है, x से डिफॉर्म हो गया, ये भी x से डिफॉर्म, x से डिफॉर्म, x से डिफॉर्म, x से डिफॉर्म, x, ठीक है, तो x से डिफॉर्म हो गया है और इट इज बैलेंसिंग, इट इज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो व्हाट आई राइट, एंड इसका इक्विवेलेंट, बेसिकली आई वांट टू रिप्लेस दिस विद दिस, कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसको मैंने x से डिफॉर्म किया और उसने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया, तो आई विल राइट F इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट x, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट, कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हम x से डिफॉर्म कर रहे हैं, इट इज बैलेंसिंग दी फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग ऑन इट, तो मैंने इधर F लगाया और इधर k इक्विवेलेंट x लगा, तो क्या आएगा यहाँ से, k equivalent x is equal to k1x plus k2x, so k equivalent is equal to k1 plus k2। now parallel combination, जैसे आप रेजिस्टेंस में पढ़ने वाले हो, रेजिस्टेंस से पढ़ोगे आप, 13th वालों को पता होगा, तो क्या होता है कि जब दोनों रेजिस्टर क्या होते हैं, दोनों रेजिस्टर के दोनों एंड्स, इसका एक एंड और दूसरे वाले का भी एक एंड, दोनों सेम पॉइंट पे, फिर इसका दूसरा एंड और इसका भी दूसरा एंड, दोनों सेम पॉइंट पे, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वैसे यहाँ पे ये इसका ये एंड क्या है, दोनों स्प्रिंग के ये एंड सेम जगह पे लगे हुए हैं, सेम कंडीशन पे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कहीं भी शिफ्ट करती हूँ, इस रिजिड पॉइंट को या इस
पिवट को, तो क्या होगा, दोनों के लिए सेम तरह का सिचुएशन होगा। इफ आई मूव दिस ब्लॉक, यहाँ पे भी अगेन दोनों क्या जगह है, सेम पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये रिजिड पॉइंट है, मतलब इसको तो हम मूव करा ही नहीं सकते, यही मतलब हुआ ना उसका। तो ये क्या है, दोनों एंड्स, दोनों स्प्रिंग के एंड्स क्या है, दीज आर एट द सेम सिचुएशन। वैसे ही इस स्प्रिंग में देखो, ये रिजिड वॉल पे फिक्स है, ये रिजिड वॉल पे फिक्स है, और इसका दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड कहां पे है, इस मास पे अटैच्ड है। तो इसको अगर मैं इधर x से शिफ्ट करूं तो दोनों के लिए डिफॉर्मेशन x होगा, इसको अगर इधर x से शिफ्ट करूं तो दोनों के लिए डिफॉर्मेशन सेम होगा। सो इफ द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर एट द सेम सिचुएशन, इसका एक एंड मतलब दोनों स्प्रिंग का एक एंड वो भी सेम जगह पे है और दूसरे एंड भी सेम जगह पे है, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे फिक्स है, दूसरा यहाँ पे है, क्लियर। तो उस केस में क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, और पैरेलल में हमारे पास क्या जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब दूसरा आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में और एक चीज क्या है कि डिफॉर्मेशन विल बी सेम इन द स्प्रिंग्स। डिफॉर्मेशन कैसा होगा, इट विल बी सेम। नाउ नेक्स्ट इज सीरीज। तो सीरीज में हमने क्या किया कि भाई ये एक स्प्रिंग है K1 की, और फिर ये दूसरी स्प्रिंग है K2 की, और यहाँ पे हमने मास लगा लिया, क्लियर। अब जब ये स्प्रिंग, और डेफिनेटली जब भी आप स्प्रिंग वगैरह लेते हो वो कैसी होती है, लाइट होती है। तो जब आप यहाँ पे स्प्रिंग की बात करोगे या इस स्प्रिंग, इस सिस्टम में आप टेंशन की बात करोगे, तो क्या है, दिस पार्ट इज वन स्प्रिंग, दिस पार्ट इज अनदर स्प्रिंग, और बीच में स्ट्रिंग लगी हुई है। दिस कंप्लीट सिस्टम इज मासलेस या फिर वेरी लाइट। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो टेंशन इसमें होगा, थ्रू आउट दिस पार्ट टेंशन इज गोइंग टू रिमेन सेम, टेंशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों में क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर डिफरेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर डिफरेंट है तो मतलब स्टिफनेस पे डिपेंड करता है ना, कि हम अगर हमने किसी पे लगाया फोर्स 1 न्यूटन, तो हो सकता है वो इतना स्ट्रेच हो जाए, और हो सकता है कि कोई दूसरी स्प्रिंग हो तो उसमें स्ट्रेच ही ना हो, ठीक है। तो स्प्रिंग स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। K का मतलब होता है जैसे 100 न्यूटन पर मीटर, तो 1 मीटर को डिफॉर्म करने के लिए यू नीड 100 न्यूटन, और जिसका 200 न्यूटन पर मीटर है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके लिए इट हैज यू नीड 200 न्यूटन टू डिफॉर्म इट बाय 1 मीटर। सो यहाँ पे अगर इस जगह से तो सेम फोर्स लगने वाला है, नीचे mg लगने वाला है, तो क्या होगा, हम सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों स्प्रिंग पे, mg से खींच रहे हैं, तो इसमें डिफॉर्मेशन और इसमें डिफॉर्मेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगा। व्हाई, बिकॉज दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा है, डिफरेंट है। तो मैंने मान लिया इसमें डिफॉर्मेशन है x1 और इसमें डिफॉर्मेशन है x2, क्लियर। बट यहाँ पे इतना तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई वॉट एवर टेंशन इज डेवलप्ड इन दिस स्प्रिंग, सेम टेंशन इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड इन दिस स्प्रिंग। तो क्या होगा, आई कैन राइट K1x1 इज इक्वल टू K2x2, और ऑन दिस ब्लॉक नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है कितना, K2x2, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है K2x2, तो हमारे पास है mg इज इक्वल टू K2x2 एंड K2x2 इज इक्वल टू K1x1। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन। अब इसको इससे इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू mg बाई K1, और इसको इससे इक्वेट करो तो x2 इज इक्वल टू mg बाई K2, क्लियर। अब यहाँ पे I want to replace this spring with an equivalent spring, तो what I write, भाई अब यहाँ पे जो स्प्रिंग है, जो मास को हमने जैसे ही अटैच किया, in that case मास को हमने जैसे ही अटैच किया, it was shifted by x displacement, ठीक है। वो जो इधर दोनों जगह स्प्रिंग थी, जैसे ही अटैच किया मास x से कितना x से डिस्प्लेस हो गया या x से नीचे आ गया, एंड वहां पे वो इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है मस्त। तो हमने क्या बोला, चलो यहाँ पे एक हम नई स्प्रिंग लगाते हैं which will get displaced by x and it will balance the mg। अब हमने इसमें कनेक्ट किया तो हमने देखा कि x1 प्लस x2 नीचे आ गया है, इसमें x1 इसमें x2, तो नेट कितना नीचे आ गया, ये x1 प्लस x2। इसका मतलब डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, नेट डिफॉर्मेशन इज x1 प्लस x2। जो m वाला ब्लॉक है वो कितना नीचे गया, x1 प्लस x2, उसमें कितना गया था x, तो हमें डिफॉर्मेशन सेम ही रखना है while you are calculating the equivalent spring constant। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने m को लगाया और वो x1 प्लस x2 नीचे चला गया, तो here I will have k equivalent, एक नई स्प्रिंग लेके आएंगे जो x1 प्लस x2 से डिस्प्लेस होके इट इज गोइंग टू बैलेंस दी mg, ठीक है। तो ये कितने से डिस्प्लेस हुआ, x1 प्लस x2, तभी तो हम बाकी चीज हमें कांस्टेंट रखनी है, तभी तो हम k को रिलेट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू
K equivalent into x1 plus x2. It is equal to K1 x1 plus equals to K2 x2. ठीक है, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है तो mg इज इक्वल टू ये आ गया, लेकिन mg इज इक्वल टू ये भी है, mg इज इक्वल टू ये भी है, तो mg इज इक्वल टू दिस, mg इज इक्वल टू दिस. क्लियर. अब यहां से क्या करेंगे, K इक्विवेलेंट इनटू ये क्या है, x1 कैन बी रिटन एज mg by k1 प्लस ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, x2 कैन बी रिटन एज mg by k2 इज इक्वल टू mg. तो यहां से हमारे पास क्या गया, mg गया. सो आई कैन राइट 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2. क्लियर है ये चीज. तो हमारे पास इस केस में क्या आया, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस, सो इस केस में हमारे पास k इक्विवेलेंट आया, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 by k1 प्लस k2. क्लियर है ये चीज. तो हमारे पास जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा we'll have k equivalent is equal to k1 k2 by k1 plus k2, and when we have parallel combination then k equivalent is equal to k1 plus k2. clear है. so these are the equivalent spring constant for a combination of spring. so इस पे हम लोग अभी spring mass system पे कुछ problems करेंगे in the topic of center of mass. So in this situation we have m and m here, and this spring is stretched by x naught. This spring is stretched by x naught. If we cut this spring, then find out the velocity of the blocks. Then find out the velocity of both the blocks. So here how we will do it? So here what is happening? Initially the spring is stretched. It is in stretch condition. So यहाँ पे क्या है? Potential energy is stored in this spring. अब जैसे ही आप उसको कट करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तुरंत गायब, एंड वेयर इट विल गेट कन्वर्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स. एंड नाउ बोथ द ब्लॉक्स आर ऑफ सेम मास. तो सिंपली आई कैन से कि दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे. इट इज सिमेट्रिक. बट अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से करना चाहो, व्हाट यू राइट, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी है v1 इधर और इसकी वेलोसिटी है v2 इधर ही भागेंगे. व्हाई? बिकॉज इट इज इन स्ट्रेच्ड कंडीशन. अब सिंपली आप लगा दो. अब इस सिस्टम पे जैसे हमने क्या किया, स्ट्रेच कंडीशन में था, हमने रिलीज किया, हमने उसको कट किया स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे क्या था, जो भी फोर्सेस हैं दोस फोर्सेस आर बिटवीन दीज ब्लॉक्स, और ये स्प्रिंग के बीच में है. तो फॉर द कंप्लीट सिस्टम दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इंटरनल. और अगर आप बात भी करो कि भाई मैंने चलो इसको खींच के रखा है, मैंने क्या किया, टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, मैंने अगर इसको खींच के रखा है, क्योंकि लगेगा कि भाई हमने जब स्ट्रेच किया तब तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था. नाउ इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैंने ऐसे स्ट्रेच करके रखा था, तो हम क्या लगा रहे थे, इधर से भी एफ फोर्स, इधर से एफ फोर्स, क्योंकि अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे होते, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, अभी भी क्या होता, ये स्ट्रेच होता रहता. सो नाउ इट इज इन स्ट्रेच्ड कंडीशन. या फिर ऐसा मान लो कि मैंने क्या किया है, इधर से इनको पिवट पे ऐसे लगा के रखा है स्ट्रिंग से, ठीक है, और मैंने तीनों स्ट्रिंग को साथ में कट किया. तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा होगा. अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, एक्स नॉट के स्ट्रेच एक्सपेंशन के साथ, तो इधर से एफ लग रहा होगा, इधर से एफ लग रहा होगा, और वो कैसा है, स्ट्रेच कंडीशन में है. अब एफ और एफ कैंसिल हो गए, ये भी क्या हो गए, जीरो, और उनके बीच में जो फोर्स है वो भी कैसा है, इंटरनल. सो जैसे ही हमने तीनों को साथ में कट किया, तो अब हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स में हम देख रहे हैं कि ये फोर्सेस कैसे हैं, ये फोर्सेस इंटरनल है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रहे हैं दोज आर आल्सो सेम. तो नेट फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा है दैट इज जीरो. सो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. तो व्हाट आई कैन राइट, mv2 माइनस mv1 इज इक्वल टू, इनिशियली क्या था, जैसे हमने कट किया तो हमने वेलोसिटीज गेन कर ली v1 v2, लेकिन इनिशियली क्या था, सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो इनिशियली 2m into 0. so यहाँ से क्या आ जाएगा, v2 is equal to v1. so basically both the masses are going to have the same velocity. initially दोनों की velocity कैसी थी, 0 थी, पूरे सिस्टम की velocity 0 थी. so now what I can do, भाई जैसे ही कट किया हमने, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी that has converted into kinetic energy of the blocks. तो I can write half k x naught square is equal to half m v square into 2. इसको मैंने बोल दिया v1 is equal to v2 is equal to v. तो अब क्या है, we have two blocks, each block have velocity is equal to half mv square.
तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट v इज इक्वल टू kx k by 2m and x naught will be outside. This is the velocity of the blocks. With this velocity the blocks are going to move. Clear? Now next question लिख लो. We have a block of mass 5 kg and 10 kg. It is moving with velocity 4 meter per second in this direction. It is moving with velocity 10 meter per second in this direction. Then find out the maximum elongation in the spring. Find out the maximum elongation in the spring. Clear? तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, फिर एक दो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या देख रहे हैं, हमने किया हुआ है. तो अगर आप सोच पा रहे हो तो बताओ हमने कैसे किया था. तो सोचो और ट्राई करो इसको. तो बेसिकली इट इज मूविंग विथ 4, दैट इज मूविंग विथ 10. तो क्या होगा यहाँ पे, एक धीरे चल रहा है, दूसरा फास्ट चल रहा है. सो इट इज गोइंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग. ये फास्ट जा रहा है, ये धीरे जा रहा है. तो स्प्रिंग कैसी होगी, स्ट्रेच होगी. स्ट्रेच होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी. और जैसे ये स्ट्रेच होना शुरू करेगी, इट विल अप्लाई अ फोर्स. कैसा फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ. इट इज गोइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट्स. सो इसको पुल करेगी तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, इस पे रिटार्डेशन आएगा बिकॉज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. इसको पुल करेगी, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. तो इस पे कैसा आएगा, इस पे एक्सेलरेशन आएगा, इस पे रिटार्डेशन आएगा. सो इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. तो एक की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो बेसिकली सिचुएशन क्या है, एक की वेलोसिटी डिक्रीज और एक की वेलोसिटी इंक्रीज. तो किसी न किसी टाइम पे तो सेम लेवल पे आएंगे. ठीक है, एक की वेलोसिटी डिक्रीज, एक की वेलोसिटी इंक्रीज. तो क्या होगा, एट सम पॉइंट वो सेम वेलोसिटी पे आएंगे. तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज. अब जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, स्ट्रेच होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है. जैसे ही सेम वेलोसिटी पे आए, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, 1 सेकेंड मान लो या 1 मिली सेकेंड मान लो, फॉर दैट मोमेंट दे आर नॉट गोइंग टू, द स्प्रिंग इज नॉट गोइंग टू गेट स्ट्रेच. क्योंकि उतने छोटे टाइम, वहां पे क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं. जितना आगे बढ़ा उतना ही आ गया. इसके बाद क्या होगा, भाई स्ट्रेच तो है ही, स्प्रिंग फोर्स तो लगा ही रही है ना, तो वो खींचे जा रही है. तो अब इसकी वेलोसिटी, इस पे रिटार्डेशन लग रहा था, दोनों मान लो आ गए 6 मीटर पर सेकंड पे आ गए. मान लो दोनों 6 पे आ गए. अब इसकी फटाक से कितनी हो गई, 5, और इसकी कितनी हो गई, 7. क्योंकि इसकी तो कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है. इसकी हो गई 5, इसकी हो गई 7. ये फास्ट भागने लगा. अब क्या होगा, अब लेंथ धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि ये धीरे चल रहा है, ये जल्दी चल रहा है. ठीक है, अब धीरे धीरे उसका जो स्ट्रेच है वो कम होने लगेगा. तो मैक्सिमम कब स्ट्रेच है, व्हेन बोथ हैव सेम वेलोसिटी. ठीक है, लिख लेंगे ये. मैक्सिमम elongation will be when both have same velocity. तो सिंपली हमें क्या लगाना है, we have to apply the conservation of linear momentum. So initially क्या है, 5 into 4 plus 10 into 10 is equal to 15 into v. क्लियर? तो यहां से हमारे पास आ गया 100, ये हो गया 120 is equal to 15 into v. So v is equal to आ गया 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड जब हो जाएगी वेलोसिटी, तब दोनों क्या करेंगे, तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा. तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को ये पता है कि व्हाटएवर काइनेटिक एनर्जी विल गेट रिड्यूस्ड, दैट विल बी यूज्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो अब यहाँ पे क्या है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट डेल्टा के ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. कोई और वे है ही नहीं. जो भी यहाँ पे इलोंगेशन आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो पहले कितनी थी, हाफ इंटू 5 इंटू 16 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 100 माइनस बाद में कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू 64. सो आई कैन राइट so I have 40 plus 500 minus 480. तो ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 60. तो 60 इज इक्वल टू हाफ के ले लेते हैं 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर. अब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया 120 और ये 120 से कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा 1.2. सो रूट 1.2 विल बी इक्वल टू एक्स मैक्स. मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी रूट 1.2. ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, कभी कभी हमको दे देगा दोनों सेम साइड में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों सेम साइड में मतलब कंप्रेशन वाली कंडीशन, अगर मैंने इसको 10 दे दिया, इसको 4 दे दिया, देन क्या होगा, देन देयर विल बी अ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, उस केस में कंप्रेशन होगा। तो आपका ये टास्क है कि फाइंड आउट करेंगे कि कितना कंप्रेशन होगा। क्लियर है चीज? ये 4 से इधर जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है और वो 4 से इधर जा रहा है, देखना कि क्या कंडीशन आती है आपके पास, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन से नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे एंड देन वी विल स्टडी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी इस लेक्चर में जो भी आपका छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड प्लीज स्टडी वेल, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। थैंक यू।